Hello students, today we are going to study second part of motion chapter. Today we are going to study about graphical representation of motion and equations of motion by graphical method. So graphs are very very best way टू रिप्रेजेंट एनीथिंग कि ग्राफिकल फॉर्म में हम किसी भी चीज़ के रिलेशन को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रॉपर वे में वी कैन शो। तो उससे किसी भी चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, रिलेशन है, वो बहुत अच्छे से हम क्लियर कर सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन टाइम, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डेथ रेट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, प्राइस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और एनीथिंग। आप देखते होंगे न्यूज़ में भी या किसी भी चीज़ में किसी भी डिसीज़ का डेटा है कि व्हेनेवर वी हैव टू रिप्रेजेंट एनी डेटा, कि कई सारे न्यूमेरिकल्स का डेटा हमें रिप्रेजेंट करना है, सो ग्राफ्स आर द बेस्ट मेथड. And if we talk about motion, so graph is the best tool to represent motion of an object. किसी भी बॉडी का मोशन यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ से बहुत अच्छे से हो जाता है. So we are going to study about various type of graph and their relation in this video. So first of all we are going to study about distance and time graph. As you can see here, we have taken distance and time and we are going to describe uniform and non-uniform motion with the help of distance time graph. As you can see here, I have taken time on x-axis and distance on y-axis. So do you remember the definition of uniform and non-uniform motion? तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि when the equal distance covered in particular time, that is called as uniform motion, but when the distance covered varies with the passage of time, then it is said to be non-uniform motion. तो एक और उसके बीच का डिफरेंस होता है, that is the graph obtained by uniform motion is always a straight line. But the graph obtained by non-uniform motion, it is slope or curve. Why? Because in case of non-uniform motion, speed may increase or decrease with the passage of time. So here it is slope, and in second case we have obtained curve for non-uniform motion. Why? Because here speed is increases with time, but here speed decreases with time. Similarly, we can plot a graph between velocity and time. So here you can see in case of uniform motion, if we plot a graph, so velocity increases with the passage of time. कि suppose at 0 it is velocity is 0, object is at rest, but it is increasing gradually with the increase in time. So it shows the relation between velocity and time. कि it is uniform motion, it means velocity is increasing at a particular rate with the increase in time. Now we are going to study derivation of equation of motion by graphical method. So what are these three equations and what relation they show? So first equation of motion, it gives relation between velocity and time. That is उसकी जो इक्वेशन आएगी, that is v equal to u plus at, ये हमें डिराइव करके लेकर आना है. जबकि सेकेंड इक्वेशन, it shows the relation between position and time. पोजीशन और टाइम का रिलेशन शो करेगी. So its equation is s equal to ut plus 1/2at square. जबकि जो थर्ड इक्वेशन है, it gives the relation between position and velocity, कि इन दोनों को मर्ज कर दो फर्स्ट और सेकंड को, तो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी आपकी. तो थर्ड इक्वेशन, it is v square minus u square equal to 2as. अब ये क्या है u v a t s,
that we are going to see and that we are going to derive now. So as you know, the velocity time graph of a uniformly accelerated body in a motion is a straight line, है ना. अभी हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है जब हम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाते हैं ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन. So suppose an object is moving from here, it start from rest and its initial velocity is u and covers a particular distance, reach up to here and its final velocity is v. It means it get accelerated with the change in time. Now here we can take ki initial velocity u, final velocity v and acceleration a, time taken is t, small t और small a से हम एक्सेलरेशन और टाइम को डिनोट करेंगे. अब वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ अपॉन टाइम. तो इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारा, ये वेलोसिटी चेंज हुई है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दैट इज बी सी, उसे हमने बी सी कंसिडर कर लिया. विथ द टाइम, टाइम क्या है हमारा, ये ए और सी, तो हमने लिख दिया बी सी अपॉन ए सी. From the graph you can see that कि BC it is equal to DB minus DC, है ना. DB minus DB minus DC. तो हम लिख सकते हैं कि BC के साथ, BC के अगेंस्ट में हम क्या लिख सकते हैं, BC equal to DB minus DC upon AC as it is. ठीक है. Now we consider it as a फर्स्ट इक्वेशन. अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट माने तो अब हमें पता है इक्वेशन से यदि हम देखें तो dB इट इज इक्वल टू v. dB v के इक्वल है, v है कैपिटल v, इट मीन्स इट इज फाइनल वेलोसिटी. और dc क्या है, इट इज इनिशियल वेलोसिटी. ये देखिए है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है हमारी, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था. और ac क्या है, ac इट इज इक्वल टू t. क्यों, क्योंकि हमने जो ले रखा है एक्स एक्सिस पे वो टाइम है, तो इट मीन्स ए सी इक्वल टू टी, टाइम. तो ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. एंड ए सी इट इज इक्वल टू ओ डी, इट इज इक्वल एंड पैरेलल. सो नाउ वी कैन पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट. ये से यदि हमने इक्वेशन फर्स्ट माना है तो ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, दैट वी विल गेट. ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, t यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू. और इसे u को इस तरफ लेकर आए तो क्या हो गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ये हमें मिल गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी. So it is the relation between velocity and time. ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये इसका डेरिवेशन है और ये शो करता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच गिव्स रिलेशन बिटवीन पोजिशन एंड टाइम. सो we know that the distance traveled by the object it is equal to the area covered under velocity time graph. किसी ऑब्जेक्ट ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है एंड इट रीचेस फ्रॉम u टू v, तो ये जो एरिया है ये किसके अंदर कवर हो रहा है, इट इज अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एंड ऑल्सो इट फॉर्म अ ट्रेपेजियम. ये एक ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज द ट्रेपेजियम फॉर्म्ड इज ओ ए बी डी. ये ट्रेपेजियम यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, दैट इज ओ ए एंड बी डी. ये ट्रेपेजियम है. एंड ये जो ट्रेपेजियम है इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल. कि इसका एरिया किसकी इक्वल है, इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, एडिशन है. तो वी कैन राइट इट लाइक दैट कि इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ट्राइंगल क्या है हमारा, ए बी सी. ये ए बी सी ट्राइंगल हो गया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज ओ ए सी डी. ये हमारा रेक्टेंगल है.
तो इन दोनों के सम की इक्वल हमारा डिस्टेंस कवर हुआ। सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस रेक्टेंगल का इट इज लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो वी नो दैट, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज इक्वल टू 1/2, ब्रेड्थ जो है वो किसके इक्वल है, हमारे AC के इक्वल, एंड हाइट इट इज BC, प्लस जो लेंथ है इट इज OD एंड ब्रेड्थ इज OA। तो वी कैन कंसिडर इट एज नेक्स्ट इक्वेशन। नाउ वी नो दैट by the graph we can see that AC it is equal to OD equal to T, कि AC equal to OD equal to T टाइम के रिस्पेक्ट में है ये। नेक्स्ट BC, ये हमने पहले इक्वेशन में भी देखा था कि BC इट इक्वल टू DB माइनस DC एंड इट इज इक्वल टू V माइनस U बिकॉज इट इज V एंड इट इज U। तो इसे हम लिख सकते हैं कि DB माइनस DC इक्वल टू V माइनस U, और OA इट इज इक्वल टू U, इनिशियल वेलोसिटी है ये। सो नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन 1, व्हाट वी विल गेट, S इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहेगा, AC की जगह T, फिर इंटू BC की जगह हमने रख दिया V माइनस U प्लस OD की जगह U एंड OA इक्वल टू T। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हमें पता है बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट V इक्वल टू U प्लस AT, इट मीन्स AT इक्वल टू V माइनस U। इससे हम AT की वैल्यू निकाल ली, तो अगर AT इक्वल टू V माइनस U है तो हम इस V माइनस U की वैल्यू जो है वो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, इट इज S इक्वल टू 1/2 T, और V माइनस U की जगह हमने क्या रख दिया AT प्लस UT। सो इफ वी विल सॉल्व इट तो वी विल गेट S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये T प्लस AT क्या हो गया AT स्क्वायर, और ये UT एज इट इज। तो दिस इज our second equation of motion. Now we are going to study about third equation of motion that shows the relation between position and velocity. So students, आपको कुछ नहीं करना है, जो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है दे आर क्वाइट सिमिलर, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं उसके डेरिवेशन में। तो आप एक की डेरिवेशन करेंगे तो सेकेंड ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगी कि फर्स्ट हाफ पोर्शन उसका बहुत ज़्यादा सिमिलर है। कि जैसे हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट इज़ इक्वल टू एरिया कवर्ड, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, जैसा अभी हमने देखा था, है ना। इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड रेक्टेंगल OACD, है ना। अब वापस से हम इनको उनमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, S इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 1/2 इंटू AC, क्यों, क्योंकि इट इज 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बेस क्या है हमारा AC और हाइट क्या है BC, ठीक है, प्लस OD दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज OD इंटू OA। अब हमें पता है कि AC किसके बराबर है, AC किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू OD, इट इज इक्वल टू टाइम T के बराबर है ना। और उसके साथ साथ BC जो हम देखते आ रहे हैं, BC इक्वल टू DB माइनस DC, इट इज इक्वल टू V माइनस U, एंड OA इट इज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज U। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो यू विल गेट दिस इक्वेशन दैट इज S इक्वल टू 1/2 इंटू T इंटू V माइनस U प्लस T इंटू U। अब हमें पता है कि V माइनस U इक्वल टू AT होता है, तो इसमें से हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज T इक्वल टू क्या हो जाएगा V माइनस U अपॉन A।
by putting the value of a, that is v minus u upon putting the value of t, that is v minus u upon a, उसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2as इक्वल टू u प्लस वी एंड u माइनस वी। अब आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसी तरीके से हम इसको, यही फॉर्मूला हो रहा है इसमें, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि इट इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मीन्स यू प्लस वी एंड यू माइनस वी की जगह हम लिख देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और व्हेन वी विल रीअरेंज इट you will get this equation, that is v square minus u square equal to 2as. So it is third equation of motion. I hope you have understood about all the three equation of motion.